Okay, once again, welcome all of you. So, this is 15 days free online learning workshop going on, and all of you standard 9 students, I heartily welcome once again. So, as you all know, we are discussing the chapter called number system. This is the first chapter for standard 9. Okay, now in this chapter, this is our third lecture. In first lecture, first part, we have discussed different types of numbers. Okay, as you all remember, natural numbers, whole numbers, integers, rational number, irrational number, and real numbers. And then we solved some questions based on that. In second part, second lecture, we discussed how to convert decimal into P upon Q format and how to convert P upon Q format into decimals. Okay, so today we are continuing in third part some more questions based on rational numbers and irrational numbers. So this is actually the third exercise in CBSE book, and in Maharashtra State Board textbook also these questions are there. Alright, so let us write first question for today. Question is, define rational and irrational numbers. Okay, and second part of the question is, can you differ them from each other? So we have to write definition of rational and irrational number, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमें लिखना है. All right. So I will write like this. We will make a chart of this. In left hand side we will write rational numbers, and on right hand side we will write irrational numbers. Okay, so our point number 1 is definition. So as you all remember, what was the definition of rational numbers? We discussed this in first lecture only. Okay, the numbers of the form P upon Q, where P comma Q are integers, Q not equal to 0, are called as rational numbers. Okay, that means rational numbers can be expressed as P upon Q, numerator upon denominator. Definition of irrational numbers. Actually, irrational number could be defined in 2-3 ways, as we have seen in first lecture. So, but here, since we have written definition of rational number like this, so irrational number we will write definition first, that the numbers which cannot be written in the form of P upon Q, where P comma Q are integers and Q not equal to 0. Okay, so these are irrational numbers. They cannot be written as P upon Q, numerator upon decimal format. For example लिखो, तो rational numbers we can write, say 5 upon 3, minus 3 by 7, 0, that is nothing but 0 upon 1, 2, that is nothing but 2 upon 1, etc.
Here examples. All of you remember irrational numbers second definition. These are actually non-terminating, non-repeating decimals. So those examples will come. For example, 1.2345 dot 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 33.4567 dot dot dot. ओके, यहाँ पे चाहे तो आप एक्स्ट्रा ए बी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, से 0.5 बार, 1.45 बार, 1.32 बार, like this. Okay. Next, second difference. So this was the first point. We have written definition of rational and irrational numbers. Now we have to write difference between them. So as such we have written first difference, that rational numbers can be written in the form of p by q, irrational cannot be written in the form of p upon q. Second difference, rational numbers are terminating or non-terminating, recurring means repeating decimals. I hope you remember this. For example, ये जो सारे नंबर्स है रिपीटिंग 0.5 और डेसिमल्स जो है जहाँ पे डिजिट्स रिपीट हो रहे 555 डॉट 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 1.45 बार, that is 1.4545 dot dot dot. Okay, so like this. Or we can write terminating decimals, say 2.5. So this can be expressed as p upon q also. So rational numbers are terminating or non-terminating recurring decimals. And what are irrational numbers? Irrational numbers are non-terminating and non-recurring decimals. Okay, examples are written here. Once again we can write, say 1.10, 100, 100 dot dot dot. देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, वो रिपीट होना चाहिए कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे 0 1, बाद में 2 बार 0 आया, बाद में बीच में 1 आया, ऐसे नहीं. यहाँ पे 555 रिपीट हो रहा है, 4545 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, सो ये है इरेशनल नंबर्स. और एक एग्जांपल लिख सकते हैं 1.2345 डॉट डॉट. ओके, थर्ड पॉइंट, रैशनल नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स are rational. For example, आप सब लोगों को पता है परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर आता है या होल नंबर आता है. स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2. ये सारे कहे हैं रैशनल नंबर से 1 2. स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4, etc. Okay. And in irrational number, the square root of non-perfect square numbers they will come in irrational numbers. So square root of non-perfect square numbers are irrational. Okay. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप सब लोगों को पता है, ये आता है 1.4145 डॉट डॉट डॉट. अलग अलग डिजिट
आ रहे पॉइंट के बाद, √3, 1.732 डॉट 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 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे 2, 3, 5 का स्क्वायर रूट हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, वो डेसिमल फॉर्मेट में आता है और ये सारे डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है। तो इससे हमें पता चला कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर ऑल्सो इरेशनल। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 3 डिफरेंसेस है। रैशनल पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, इरेशनल पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या बताया? ऑल द डेसिमल्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये 2 टाइप के जो डेसिमल्स है वो इरेशनल रहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले इरेशनल रहते हैं। ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रैशनल, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इरेशनल। प्लीज नोट डाउन। Okay, completed. All right. Second question, you can complete if it is not completed. Check whether given statement is true or false and give reasons why it is true or why it is false. Number 1, every terminating decimal is a rational number. Yes, बताओ. Very good. It is answer is true. क्योंकि अभी हमने देखा रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। लेकिन इसका रीजन लिखते हो कैसे लिखना है? एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल
can be represented in the form of P by Q, where P comma Q are integers, Q not equal to 0. Therefore, they are rational. Okay. For example, 2.5 can be written as 25 by 10, or we may say 5 by 2. 0.3 can be written as 3 by 10. Okay, like this. So इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में आते हैं, इसलिए वो रैशनल है. Second, every repeating decimal is a rational number. बोलो आंसर. तो आप सब लोगों को वैसे भी पता ही है कि इरेशनल नंबर्स आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. सो दैट मीन्स जो रिपीटिंग है वो नेचुरली रैशनल नंबर्स आएंगे. तो एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और इसका रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज repeating decimals can be written in the form of P upon Q. That means rational. P upon Q, where P comma Q are integers and Q not equal to 0. इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो. फॉर एग्जाम्पल 0.3 बार इज 3 by 9, दैट इज 1 by 3. 0.45 बार इज 45 upon 99. ये हमने शॉर्टकट में देखा था लास्ट लेक्चर में, याद है? ओके, ये एग्जाम्पल्स आ गए. नेक्स्ट, number 3, every irrational number is a real number. ये तो बहुत ही आसान है. हाँ, वेरी गुड. दिस इज ट्रू because real number contains both rational as well as irrational. Because real numbers are both rational and irrational. आप लोगों को याद होगा, ये हमने चार्ट ड्रॉ करके सब देखा था. दोनों रैशनल प्लस इरेशनल मिला के रियल नंबर्स होते. नेक्स्ट, नंबर 4, every point on the number line is of the form square root of m, where m is natural number. तो नंबर लाइन पे जो सारे नंबर्स रहते हैं, क्या वो सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट रहते हैं क्या, वो चेक करना है. तो बहुत ही आसान है. ये क्या आएगा? फॉल्स. ऐसा क्यों?
क्योंकि आप देखो जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3, इनका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.414 डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 1 आ गया, स्क्वायर रूट 2 1.414 आ गया, लेकिन इसके बीच वाले जो नंबर्स है दैट इज 1.1 1.2 1.3, ये सारे बीच वाले नंबर्स तो इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहे। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ m दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, खाली हमें उनका स्क्वायर रूट के वैल्यूज देंगे, लेकिन जो इन बिटवीन वैल्यूज है वो हम डिनोट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। इसका रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज इन बिटवीन, से एग्जांपल इन बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, तो समझो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनके बीच में बहुत सारे बाकी नंबर्स भी है, लेकिन यहाँ बताया गया कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, सो दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स, बिकॉज इन बिटवीन रूट 3 एंड रूट 3 देयर आर अदर रियल नंबर्स, so this is the reason, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट, ये बहुत ही आसान है। एवरी रियल नंबर is an irrational number। ओके, अभी हमने देखा कि सारे इरेशनल रियल नंबर्स है, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे क्या? नहीं, क्योंकि कुछ बचे हुए रैशनल भी रह सकते हैं, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या आएगा? फॉल्स। इसमें रीज़न क्या लिखना है? सिंस rational numbers are also real numbers, खाली irrational ही नहीं है, rational भी उसमें आने चाहिए। प्लीज नोट डाउन। Completed? Okay.
question. Write following numbers in decimal form and say the kind of expansion it has. ओके, ये क्वेश्चन है. अभी नीचे दिए गए नंबर्स को डेसिमल फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसका टाइप बताना है. काइंड मीन्स टाइप. तो सबसे पहला 36 डिवाइडेड बाय 100. तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, आप सब लोगों को पता है. इसका आंसर आएगा 0.36. चाहे तो आप इसका लॉन्ग डिवीजन ले लो पहले और बाद में यही आंसर आएगा 0.36. और इसका अभी हमें टाइप भी बताना है. तो ये कौन से टाइप का डेसिमल है? एक्चुअली इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, सेकंड, से 1/11. तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन करके देखेंगे. तो आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन ले लो और उसको सॉल्व करो, वहाँ से आपको डेसिमल नंबर आएगा. इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किया है. अभी खाली मैंने यहाँ एक्स्ट्रा एक एडिशन किया कि इसका टाइप भी बताओ. सो देयरफॉर, तो आप ऐसा डिवीजन लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 11. सो 0 से डिवाइड किया, बाद में और एक 0 लिया, पॉइंट दिया, फिर 10 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 11. तो फिर से 0 से डिवाइड होगा, यहाँ और एक 0 लिया. अभी आएगा 11 9 जा 99, 100 माइनस 99 1. फिर से यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया, एक 0 लिया, 0 से डिवाइड किया और एक 0 लिया. अभी 9 से डिवाइड करो, ठीक है. फिर से 1 रिमाइंडर आया. तो आप लोगों को याद है कि ये रिमाइंडर रिपीट कब होता है? जब हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिलता है. तो इस केस में रिमाइंडर 1 रिपीट हो रहा है. तो क्या रिपीट हो रहा है? 09 09 09. पॉइंट के बाद ऐसे आगे चलते रहेगा. तो इसका आंसर आया 0.09 बार. ठीक है, 09 रिपीट हो रहा है, उसको हम डायरेक्टली इस बार से डिनोट करते हैं. ओके, एंड दिस इज नथिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे डिजिट्स 09 09. ये 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. ओके, तो अगर मैं आपको पूछो कि ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आता है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म और आपको टाइप पूछा जाएगा, तो आंसर क्या क्या आ सकते हैं? तो आंसर ये 2 ही आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. बस. क्यों? क्योंकि जो रैशनल नंबर्स है वो इसी 2 टाइप के डेसिमल्स है. तो इसीलिए आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा. ओके, तो अभी लॉन्ग डिवीजन वाला जो पार्ट है आप खुद कर लेना. मैं खाली इसका डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म लिखता हूँ और आप क्रॉस चेक करके देखो कि वो करेक्ट है क्या. बाय आफ्टर दिस क्लास डिवीजन करके देखो डेसिमल एक्सपेंशन करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, अगला है 2/11. ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप लिख सकते हैं 2 into 1/11. ये जो 1/11 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1/11 का डेसिमल फॉर्मेट ये आया. तो इसको 2 से डिवाइड किया तो वो आएगा 0.18 बार.
ओके, चाहे तो आप एक्चुअल डिवीजन लेके देखो ऐसे 2/11, ये आप खुद कर लेना डिवीजन, मैं डायरेक्ट अभी डेसिमल फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका टाइप आएगा फिर से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद 181818 रिपीट होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट 4 1/8, 4 एज अ होल 1/8। इसको अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आएगा 4.125। आप एक्चुअल डिवीजन लेके देखना, चाहे तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सो दिस इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन, एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू fraction we will get this as 8 4 the 32 plus 1 33 divided by 8। ओके, सो इसका डिवीजन लेके देखो, आपको यहाँ आंसर आएगा 4.125। सो दिस इज एक्चुअली टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 5 3 डिजिट के बाद आंसर स्टॉप हो रहा है। ओके, ऑल राइट, इतना काफ़ी है। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। एक्चुअली ये वाला 1/7 जो है, ये लॉन्ग डिवीजन आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया है, इसका डिवीजन करके, और डेसिमल फॉर्मेट ये आता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, इसमें ये 6 डिजिट का ग्रुप रिपीट होते रहता है आगे ऐसे। ओके, तो आपको 1/7 का वैल्यू दिया है, यू नो दिस वैल्यू। ओके, अभी क्वेश्चन पूछा है, कैन यू प्रिडिक्ट what will be the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actual long division? Without actually long division। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, आपको लॉन्ग डिवीजन करके नहीं देखना है,
लेकिन 2/7, 3/7, 4/7 के डेसिमल वैल्यूज एक्सपेंशन हमें फाइंड करना है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए आपको क्या दिया है, 1/7 का वैल्यू दिया है, तो बस इतना काफ़ी है। तो इसका आंसर आएगा, अगर मुझे 2/7 चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। ओके, दैट इज 2 इंटू 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857 बार। ऑल राइट, हमें पूछा गया इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें से 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 2 इंटू 1/7। 1/7 का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस अभी 2 से मल्टीप्लाई करो, और 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो बार वाले 6 डिजिट है इनका डबल हो जाएगा। 2 से खाली आपको इन 6 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम साइड में कर लेंगे ऐसे रफ वर्क में। 142857 into 2, so 2 7s are 14, carry 1, 2 5s are 10 plus 1 11, carry 1, 2 8s are 16 plus 1 17, carry 1, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 1s are 2. So the answer is I'm sorry, 2 7s are 14, carry 1, 2 5s are 10 plus 1 11, carry 1, 2 8s are 16 plus 1 17, carry 1, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 4s are 8, sorry I missed 4, and 2 1s are 2, 2 8 5 7 1 4. तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 8 5 7 1 4। अभी देखो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.285714 बार। ओके, वैसे ही 3/7 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1/7। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.142857 बार। बस अभी क्या करना है, 142857 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4/7 के वक्त 4 से, 5 से और 6 से। आई होप दिस इज क्लियर। रिमेनिंग यू कैन फाइंड आउट, प्लीज राइट डाउन। इसका आंसर आता है 0.428571 बार। ठीक है, बचे हुए आप फाइंड कर लो 4/7, 5/7, 6/7 के वैल्यूज। बस इसको हमें 4 से, 5 से, 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसके ऊपर बार लिखना है, 0. बार। ओके,
कंप्लीट है? ओके. See, the reason why we are taking so much practice of questions is to become perfect. Practice makes one perfect. So please try to understand, the more you practice, the more your concepts become strong और वो ज़्यादा दिन याद रहता है. ठीक है. अगर आप खाली थियरी पढ़ लेंगे कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो वो बहुत दिनों तक हमें याद रहता है. ओके. सो प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट. तो इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके ले रहे हैं. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन. If a rational number P upon Q is terminating decimal, ओके, ऐसा हमें दिया है, then what property स्मॉल q मतलब डिनोमिनेटर, व्हाट प्रॉपर्टी q शुड फॉलो. तो रैशनल नंबर p अपॉन q ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है. तो इसमें डिनोमिनेटर q का कोई स्पेशल प्रॉपर्टी आता है कि नहीं? तो आपको याद आ रहा होगा, हमने एक नोट लिखा था. डू यू रिमेम्बर दैट? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उनका डिनोमिनेटर और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन. तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा रहता है? हाँ, वेरी गुड. यस, क्या क्या रहता है? 2, वेरी गुड, 5 और बोथ, वेरी गुड. सो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है डिनोमिनेटर का, उसके जो फैक्टर्स है उसमें पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ, ये दोनों आएंगे. याद है? तो वही डेसिमल्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रहते हैं. बचे हुए डेसिमल जो है, बचे हुए रैशनल नंबर जो है जिनका डिनोमिनेटर 2, 5 या दोनों छोड़ के दूसरा प्राइम फैक्टर देते हैं, वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स में चले जाएंगे. ठीक है. तो अभी हम ये लिख सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखेंगे पहले और फिर उस एग्जांपल से हम कंक्लूड करेंगे. से फॉर एग्जांपल, let us take some examples. So एक एग्जांपल लेते हैं, से 0.25. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसको अगर हमने p/q फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो यहाँ आएगा 1/4. ऑल राइट. तो इसका मतलब यहाँ पे p का वैल्यू होगा 1 और q का वैल्यू होगा 4, और उसके प्राइम फैक्टर्स ले लिए हमने 4 के, तो आएगा 2 × 2, दैट इज 2 स्क्वायर. ऑलराइट. बाद में समझो और एक हमने लिया 0.125, तो ये क्या आ जाएगा? 125/1000, दैट इज 1/8. तो यहाँ p आया 1 और q आया 8.
ठीक है, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब। समझो, और एक लिया से 0.008, दैट इज 8/1000। तो इसको लिख सकते हैं 1/125। पी का वैल्यू 1, क्यू का वैल्यू 125। तो 125 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 क्यूब। ओके, और एक एग्जांपल लिया 0.36, 36/100। ऑल राइट, इसको ऐसे ही रहने दो, या तो सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो 2 से डिवाइड होगा 18/50, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 9/25। ऑल राइट, या ऐसे भी छोड़ दिया तो आप ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, 36 के बदले हम 37 ले लेंगे, 37/100। तो यहाँ P का वैल्यू 37, Q का वैल्यू 100, और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 50, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 25, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे सारे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 के पावर्स आ रहे, या तो 5 के पावर्स आ रहे, या 2 और 5 दोनों के पावर्स आ रहे। दैट्स ऑल। तो यहाँ से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट in terminating decimals of P by Q, the prime factorization of Q has powers of 2 or 5 or both। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। वो प्रॉपर्टी फिर से हमने यहाँ पे रिपीट किया, प्लीज नोट डाउन। Completed? Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड three different irrational numbers between 5/7 and 9/11. If you remember, we have solved such questions in our first part, that find 5 rational numbers between two given a and b, और फाइंड 6 रैशनल नंबर एक्सेट्रा। तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम पहले और आखिरी का जो नंबर है जिन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो उन दोनों को अगर 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उन दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अभी अलग है। वी हैव टू फाइंड इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये दोनों रैशनल नंबर्स है, ठीक है। इन दोनों के बीच वाले इररेशनल हमें फाइंड करने हैं। तो एक चीज़ याद रखो, इररेशनल को तो हम P/Q फॉर्मेट में लिख नहीं सकते, तो इसीलिए हमेशा इररेशनल कैसा आएगा, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा। तो इसीलिए अभी जो दिए हुए दोनों रैशनल नंबर है, पहले इनको हमें डेसिमल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो इनका डेसिमल फॉर्मेट जो है वो क्या आता है, आंसर सबसे पहले 5/7, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। 1/7 का वैल्यू हमें पता है, उसको 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से 5/7 आता है। या तो आप क्या करो, रफ में सेपरेटली डिवीजन लेके देखो 5 डिवाइडेड बाय 7 और फिर उसका डिवीजन क्या आता है। सो वी कैन सॉल्व हियर 5 डिवाइडेड बाय 7। सो 0 से डिवाइड होगा, यहाँ 0 आया, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया, 7 7 जा 49, कैरी 1, सब्ट्रैक्ट 1, तो यहाँ आया रिमाइंडर 1। फिर से ऊपर से 0 लिया, 7 1 जा 7, 10 - 7 3, 0 लिया, 7 4 जा 28, 2 0 लिया, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर 6 लिया, 7 8 जा 56, 4 आया, ऊपर से 0 लिया, 7 5 जा 35, 5 ऊपर से 0 लिया। अभी देखो रिमाइंडर यहाँ पे 5 1 3 2 6 4, फिर से अभी 5 है। अभी 50 को डिवाइड किया तो 49, 7 7 जा 49, बाद में 1 बचेगा, 7 1 जा 7, तो क्या हो रहा है, अभी 7 1 4 2 8 5 रिपीट होगा। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे 7 1 4 2 8 5 बार। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। सो 0.714285 बार। ओके, और दूसरा है 9/11, इसको भी सॉल्व करके देखो। 9 डिवाइडेड बाय 11, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आता है। सो 11 को 11 9 से डिविजिबल है, वी कैनॉट डिवाइड, सो डिवाइड बाय 0, तो यहाँ एक्स्ट्रा 0 ले लो, पॉइंट दे दो। 11 8 जा 88, 90 - 88 2, ऊपर से 0 लिया, 11 1 जा 11, फिर से 9 आया, अभी फिर से 9 आया, ऊपर से 0 लिया, तो फिर से 11 8 जा 88, फिर से 2 0, 11 1 जा 11, फिर से 9, मतलब क्या आ रहा है, 8181 रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.81 बार।
ओके, तो ये दोनों रैशनल नंबर का हमें डेसिमल फॉर्मेट मिल गया लॉन्ग डिवीजन से। अभी हमें पूछा गया इन दोनों के बीच में थ्री इरेशनल नंबर्स हमें बताने हैं। सो नाउ देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 irrational numbers are, क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? वेरी इजी एक्चुअली। देखो यहाँ है 0.71 और यहाँ है 0.81, मतलब 0.71 और 0.81 इनके बीच में हम लिख सकते हैं 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, ये सारे आएंगे। अभी हमें चाहिए इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट्स लिखो जो रिपीट नहीं होंगे, तो अलग अलग डिजिट लिख लो। 7 2 4 6 8 डॉट 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 7 3 9 8 7 6 डॉट 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 7 4 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। आ रहे समझ में? तो ऐसे सारे नंबर्स इन बिटवीन दीज टू नंबर्स विल बी इरेशनल, लेकिन इरेशनल लिखते वक्त नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहने चाहिए, इसलिए हमने ऐसे लिखा। सो दैट्स ऑल। कोई भी 3 चाहिए थे तो हमने 3 लिख लिए। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें अभी पूछा गया कि रैशनल नंबर फाइंड करो इन बिटवीन इरेशनल नंबर्स। तो ये तो और ही आसान है, ऑलरेडी हमें इरेशनल नंबर्स 2 दिए हैं। अभी 0.72468 डॉट 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 0.782345 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये है 0.72, ये है 0.78। तो इन बिटवीन रैशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 0.73, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 73/100। 0.72 और 0.78 के बीच में 0.73 आएगा, 0.74 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 74/100। दैट इज, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 31/50। बाद में आप 0.75 ले सकते हैं 75/100, उसको 25 से डिवाइड किया तो 3/4। दिस इज द आंसर। तो ऐसे है, तो आपको ऐसे फाइंड करते आना चाहिए कोई भी रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर या इरेशनल के बीच में रैशनल नंबर्स।
आई होप बोथ द क्वेश्चंस आर क्लियर। एक बार फिर से, जब हमें इरेशनल नंबर फाइंड करने रहते हैं इन बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, देन फर्स्ट स्टेप इज वी कन्वर्ट गिवन रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फॉर्म, और उसके बाद हमें इरेशनल उनके बीच वाले मिल जाते हैं। और जब रैशनल नंबर्स फाइंड करने रहते हैं तो बस डायरेक्ट आंसर लिख लो। इन दोनों के बीच में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे आप लिख लो। चाहे तो आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स भी आंसर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करने से अलावा आप इजी आंसर्स लिख लो। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। So this was the third part of number system. I hope all of you are enjoying learning mathematics. We are learning all these concept in depth, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, और इस प्रैक्टिस के कारण आप और परफेक्ट हो जाएंगे, और जो चैप्टर है उसके जो कंसेप्ट हैं आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, वैसे भी अभी कोरोना लॉकडाउन में हमें बहुत सारा टाइम मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और इसके ऊपर, इस लेक्चर के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो मैं परमाणु iCoach नाम के ऐप में डाल देता हूँ। आप सब लोगों को पता है कि वी आर फ्रॉम परमाणु iCoach टीम, तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में इस ऐप को डाउनलोड, तो उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर में टाइप करो परमाणु iCoach, PARMANUICOACH। तो गूगल प्ले स्टोर में आप ये टाइप करो और ऐप डाउनलोड करो। वहाँ से आपको ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है आज के लेक्चर के ऊपर वो मिल जाएंगे। ओके, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम परफेक्ट। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।